السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے جاگرتی رینکوں کے ساتھ کاماریڈی شہر میں ریل روکو کا اہتمام کیا، جس میں ریاست تلنگانہ میں BC کے لیے 42% ریزرویشن کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلوا کنٹلا کویتا نے کہا، یہ افسوسناک ہے کہ کانگریس حکومت BC کو 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ کرنے کے بعد پنچایتی انتخابات صرف 17% ریزرویشن کے ساتھ کر رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ BC کو کسی بھی حالت میں 42% ریزرویشن فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور BJP ریاست میں BC تحفظات کو لاگو ہونے سے روکنے کی سازش کر رہے۔ DCP ساؤتھ زون کرن کھرے IPS نے کہا ہے کہ انہوں نے نماز جمعہ کے لیے مکہ مسجد کا دورہ کیا اور چار مینار کے ارد گرد انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بدمعاشی کرنے والوں کو بھی واضح وارننگ جاری کی ہے۔ میرے دفتر کے دروازے ساؤتھ زون کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ دیکھیے DCP ساؤتھ زون کرن کھرے IPS کا کیا کہنا ہے۔ کام کر رہے اور اس میں جو ہمارا ساؤتھ زون پولیس رہے گا وہ سبھی لوگ یہاں پہ پوری طرح سے اچھا کام کرنے کے لیے ہم پورا پریاس کریں گے۔ اس میں آج ہم نے کچھ چیزیں بھی یہاں پہ وزٹ کی، جیسے عمرانی ہاسپٹل، چار مینار، مکہ مسجد اور پنچمول ایریا کو بھی یہاں پہ وزٹ کیا۔ تو میں ایز اے ساؤتھ زون DCP سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کے لیے، پورے عوام کے لیے، پورے ساؤتھ زون عوام کے لیے میرا آفس کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ کبھی بھی یہاں پہ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو بھی ہماری طرف سے رہے گا ایز اے DCP ساؤتھ زون، ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ ہم جو بھی لا اینڈ آرڈر ہے، قانون ویوستھا ہے، اس کو پراپرلی مینٹین کریں، اس کو اچھے سے ساؤتھ زون کا اچھا نام لائے، حیدرآباد سٹی پولیس کا اچھا نام لائے۔ اس کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پالیسی دستاویز پر عہدیداروں کو کئی تجاویز دی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جائزے میں عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 پالیسی دستاویز تلنگانہ کی ترقی کی عکاسی کرے۔ تلنگانہ کو 2034 تک $1 ٹریلین کی معیشت اور 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کے لیے پالیسی دستاویز میں ایک واضح روڈ میپ دیکھا جانا ہے۔ ریاست کی معاشی ترقی کو 3 خطوں میں تقسیم کر کے ترقی یافتہ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے 3 خطوں کو کور اربن ریجن اکانومی کیور، پیری اربن ریجن اکانومی پیور اور رورل ایگریکلچرل ریجن اکانومی ریر میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان تینوں خطوں میں کہاں اور کس قسم کی ترقی ہونی چاہیے، اس کو دستاویز میں شامل کیا جائے۔ صحت، تعلیم، ٹیکنالوجی، GCC، فارما، زراعت، مختلف شعبوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا جائے کہ کس شعبے کی ترقی کہاں کہاں کی جائے۔ انفراسٹرکچر، روڈ، پورٹ کنیکٹیویٹی اہم ہے۔ ہر شعبے جیسے ویلفیئر، ٹیمپل ٹوریزم، ایکو ٹوریزم، انرجی ڈپارٹمنٹ کے لیے پالیسی دستاویز میں وضاحت ہونی چاہیے۔ وزیر پونم پربھاکر نے منسٹر کوارٹرز میں BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ جائزہ اجلاس میں ریاست کی ترقی کی عکاسی کرنے کے لیے تلنگانہ رائزنگ 2047 پالیسی کے حصے کے طور پر BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گلوبل سمٹ میں اٹھائے جانے والے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مستقبل کی ترقی کے راستے کے طور پر تعلیم کو اولین ترجیح دینے کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ پسماندہ طبقات جو تلنگانہ کی آبادی کا 56% ہیں، زراعت، دستکاری، ہنر اور روایتی پیشوں کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ان کی سماجی و اقتصادی ترقی ریاست کی ترقی کے لیے اہم۔ ویژن 2047 BCs کو تعلیمی طور پر مضبوط، معاشی طور پر خود مختار، سماجی طور پر بااختیار اور ریاست کی جدت مہارت کی ترقی اور ترقی کے محرک کے طور پر عالمی سطح پر مسابقتی بنانے کا تصور کرتا ہے۔ تعلیم اور انسانی سرمایہ مسلسل معیاری سیکھنے کے ذریعے تعلیمی معیار کو مضبوط اور بہتر بنائیں اور رہائشی اداروں اور ہاسٹلز کو ایکسلنس کے مراکز کے طور پر تیار کریں۔
तेलंगाना में फूड सेफ्टी महकमे के छापे, ई कॉमर्स गोदामों से 1903 एक्सपायर अशिया जब्त। तेलंगाना कमिश्नर फूड सेफ्टी की जानिब से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके तहत जेप्टो, रिलायंस, जियो मार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मकामी यूनिट्स के गोदामों पर खुसूसी ड्राइव चलाई गई। इस कार्रवाई के दौरान 75 गोदामों का मुआयना किया गया, जहां से 98 इन्फोर्समेंट सैंपल्स और 124 सर्वेलेंस सैंपल्स हासिल किए गए। मुआयनों के दौरान महकमे ने 1903 एक्सपायर शुदा ग़िज़ाई अशिया और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जब्त किए जो मिस ब्रांडेड थे या जिन पर गुमराहकुन लेबलिंग की गई थी। इसी के साथ 76 किलो एक्सपायर अशिया, बासी खाना और सड़ी हुई सब्जियां मौके पर ही तल्फ कर दी गई। महकमे ने मुख्तलिफ गोदामों को 32 से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए और हिदायत दी कि खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। फूड सेफ्टी कमिश्नरेट ने वाज़ेह किया है कि सार्फिन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी सख्त कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बागलिंगमपल्ली सुंदरिया पार्क में इंदिरमा कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर मुत्तेश्री लता शोभन रेड्डी, एमएलए मोटा गोपाल, कॉरपोरेटर रवि चारी, दीगर अहम कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत में अहम उन लोगों के लिए नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए इंदिरमा कैंटीन कायम कर रहे जो रोजगार और दीगर कामों के लिए शहर हैदराबाद आते हैं। आज हम सुंदरिया विज्ञान मरकज और कवाड़ीगुड़ा एनटीपीसी में इंदिरमा कैंटीन कायम कर रहे। हुकूमत इस बात की निशानदेही करेगी कि शहर में इंदिरमा कैंटीन की कहाँ जरूरत है, जैसा कि मुकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों की दरख्वास्त है, हम जगह भी तरतीब दे रहे। హైదరాబాద్ లో ఉపాధి కోసం లేదా ఇతరత్ర పనులకు పోయేటువంటి వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లను అల్పాహారంతో సహా అల్పాహారం సమయంలో అల్పాహారము, మధ్యాహ్న సమయంలో భోజనాన్ని నాణ్యతతోటి ఏర్పాటు చేసే విధంగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఇప్పటికే ఒక మ్యాపింగ్ ప్లానింగ్ చేసుకొని ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కడైనా ఇటువంటి ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే కూడా गांधी भवन में टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस जो अपना वजूद खो रही, उन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मालूमात से पता चलता है कि बीआरएस दीक्षा दिवस के नाम से अवाम को गुमराह करने की तैयारी कर रही है। सूरत हाल इस मुकाम पर पहुंच गई है कि जब केसीआर अवाम में नजर आते हैं तो लोग बेजार हो जाते हैं। अवामी हुक्मरानी और तरक्की के 2 साल पर बहस के लिए तैयार हैं। केसीआर को खुद अंदाजा हो गया कि बीआरएस का दौर खत्म हो चुका है। सिर्फ केसीआर खानदान ने अवामी जज्बात का गलत इस्तेमाल करके सियासी फायदा उठाया। तेलंगाना के अवाम से अपील, बीआरएस के झूठे वादों पर यकीन न करें। केसीआर ने तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल किया। केसीआर की 2009 की भूख हड़ताल मुकम्मल तौर पर एक ड्रामा थी। केसीआर की नाम निहाद हड़ताल की वजह से तेलंगाना नहीं आया, तेलंगाना सोनिया गांधी की वजह से हासिल हुआ। केसीआर ने दावा किया है कि वो रियासत के लिए व्रत रख कर रहे हैं, लेकिन वो NIMS में मायात ले रहे हैं। इसके लिए सबूत मौजूद हैं और केटीआर को एक बार इससे गुजरने को कहा जाता है। बिहार में नई हुकूमत के क़याम के बाद सियासी माहौल एक बार फिर इल्जाम तराशी, क्रेडिट की दौड़ और हुकूमती अंदरूनी इख्तलाफात की जद में आ गया। राष्ट्रीय जनता दल RJD ने वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के अंदर एक गैर एलानिया रसाकुशी जारी है, जिसका बराह रास्त असर अवामी मुफाद और तरक्याती कामों पर पड़ रहा। RJD के तर्जुमान एजाज अहमद ने एक बयान जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत बनने के फौरन बाद से ही नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी अपने अपने सियासी बयानियों और इक़दामात के जरिए एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश कर रहे। इनके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड जहां नई NDA हुकूमत के तहत नौकरियां, रोजगार और तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी रियासत में जुराइम की रोकथाम के नाम पर 400 मुबैना मुजरिमों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की फहरिस्त मंजर आम पर ला रही। जनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों के लिए मौसम एक बार फिर तशवीशनाक बनता जा रहा, क्योंकि खलीज बंगाल में बना गहरा डिप्रेशन साइक्लोन दितवा में तब्दील हो गया है, जबकि एक और गर्दाबी तूफान सेनियार भी फाल है। इस सूरत हाल के सबब खित्ते में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा। माहिरीन के मुताबिक इन दोनों तूफानों का मुश्तरका असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, जनूबी कर्नाटक और अंडमान निकोबार के कई इलाकों में वसी
बारिश का सिलसिला पैदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में बना गहरा दबाव मजीद मुनज़्ज़म होकर साइक्लोन दितवा में तब्दील हो गया, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने प्री साइक्लोन अलर्ट जारी किया। इस तूफान का रुख शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जनूबी आंध्र प्रदेश की तरफ है, जहां 30 नवंबर तक इंतहाई खराब मौसम की वार्निंग बरकरार है। तमिलनाडु में 27 से 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि 28 और 29 नवंबर को कुछ अजला में इंतहाई शदीद बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाकों में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बारिश में नुमाया इजाफा और 30 नवंबर को बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। केरला में 29 नवंबर तक तेज बारिश के इम्कानात, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। जनूबी कर्नाटक में 29 नवंबर को मौसम अचानक तब्दील होकर तेज बारिश का सबब बन सकता है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मगरबी बंगाल में जारी खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल को सख्ती से चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। पार्टी के 10 अरकान पार्लियामेंट का वफ्द कौमी राजधानी में कमीशन के मरकजी दफ्तर पहुंचा और इस पूरी कार्रवाई पर संगीन एतराजात पेश किए। वफ्द की क़ियादत राज्यसभा में टीएमसी के पार्लिमानी लीडर डेरेक ओब्रायन ने की। इनके साथ लोकसभा में डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, साजिदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चक ब्राइक भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक इंतजामी फैसला लेते हुए आधार कार्ड को तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर नामंजूर करार दे दिया। इस सिलसिले में रियासत के तमाम महकमों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई। हुक्मनामे के मुताबिक आधार में दर्ज तारीख पैदाइश किसी मुस्तैन सरकारी दस्तावेज पर मबनी नहीं होती, इसलिए इसे डेट ऑफ बर्थ के सरकारी सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। ये अहकामात यूपी के महकमे मनसूबाबंदी प्लानिंग के खुसूसी सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने तमाम महकमों को जारी किए। हुक्मनामे में कहा गया कि तकरूरी सरकारी खिदमात, दाखिलों, सरकारी स्कीमों और दीगर हसास अमल में तारीख पैदाइश के लिए अब सिर्फ मुस्तैन दस्तावेजात जैसे पैदाइश का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट या दीगर मजाज रिकॉर्ड ही काबिल कबूल होंगे। आधार की बुनियाद पर उम्र या पैदाइश की तारीख की तौसीक नहीं की जाएगी। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के मरकजी वजारत की जानिब से ये भी बताया गया कि UIDAI ने मुल्क भर में आधार डेटाबेस को दुरुस्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई। इसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा मरहूम अफराद के आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया ताकि इन शनाख्ती नंबरों का गलत या गैर कानूनी इस्तेमाल ना हो सके। वजारत ने वाज़ेह किया है कि एक बार किसी शख्स को अलॉट किया गया आधार नंबर कभी दूसरे फर्द को दोबारा नहीं दिया जाता। बांग्लादेश की एक अदालत ने माजूल वजीर आजम शेख हसीना को बदउनवानी के जुर्म में 21 साल कैद की सजा सुनाई। इससे न सिर्फ एक हफ्ता कबल उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम के सिलसिले में सजाए मौत दी गई। 78 साल हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में मुकीम और उन्होंने बांग्लादेश वापसी के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने गुज़िश्ता साल तलबा की ज़रा क़ियादत बगावत के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया, जो बिला आखिर उन्हें इख्तिदार से बेदखल कर देने की वजह बन किया। इसी बिना पर उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इंसदाद बदउनवानी कमीशन ने साबिक रहनुमा के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका के एक मज़ाफ़ाती इलाके में मुनाफा बख्श प्लॉटों पर कब्जे के सिलसिले में 3 दीगर मुकदमात भी दर्ज किए। जज अब्दुल्ला अल मामून ने फैसला दिया कि हसीना वाजिद का तर्ज अमल मुसलसल बदउनवानी की ज़हनियत जाहिर करता है, जिसकी बुनियादें इस्तेहकाक, बेलगाम ताकत और अवामी इमलाक की लालच में है। सरकारी जमीन को एक निजी असासा समझकर उन्होंने अपनी लालची नजर रियासती वसाइल पर रखी और खुद को और अपने करीबी रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी तरीक़ेकार में हेराफेरी की है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.